جو آدمی کے دل میں بس جائے تو پھر وہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈر نہیں سکتا. کیوں؟ کہ ایمان نام ہے یقین کا. کس چیز پر؟ جو اللہ کے نبی لے کر آئے اس کو دل سے مان لینے کا نام ایمان ہے. اب آپ میرے ساتھ مل کے پڑھے پہلی مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے. آج بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے. کتنے بھائیوں کو یہ پتہ نہیں کہ ایمان کے کتنی شرائط، کتنی چیزوں کو ماننا ضروری ہے. تو آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں ایک مرتبہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 چیزیں ہیں، اگر یہ ذہن میں بیٹھ جائے تو کبھی بھی انسان بھٹکے گا نہیں. آج سی سی ٹی وی کیمرہ کہیں لگا ہو اور لکھا ہو کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی میں ہے، بولو گناہ کریں گے آپ؟ کیوں؟ صبح آپ کی تصویر آ جائے گی، پکڑے جاؤ گے. یہ سی سی ٹی وی کیمرہ کنیکشن کاٹا جا سکتا ہے، پتھر مارو توڑ دیا جائے گا. اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لو، یہ آپ کو نہیں دکھا سکتا. لیکن میرے بھائی، قرآن پر اگر یقین ہے تو سنو قرآن کیا کہتا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. ہر انسان کے کاندھے پر 2 فرشتے موجود ہیں، ایک نیکی لکھنے والا، ایک گناہ لکھنے والا. بولو ہر وقت ہے کہ نہیں؟ اب دنیا کی کوئی بندوق ہے جو ان کو مار دے؟ کوئی کنیکشن کاٹ سکتا ہے تو 1000 پردے چہرے پہ ڈال دے، چھپ سکتا ہے. تو اب بتا، رات کے اندر جب تو کہتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، خدا کے بندے تیرا ایمان کہاں گیا؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، تیرا رب بھی تجھے دیکھ رہا ہے اور یہ فرشتے بھی تجھے دیکھ رہے ہیں. ارے بولو دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ دیکھ رہے ہیں. تبھی تو بریلی کے تاجدار نے کہا تھا دل لہو میں کھونا تجھے، سب صبح تک سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سب سے پہلے خدا کا خوف پیدا کرو. اسی لیے پیدا ہوتے ہی کان میں سبحان اللہ نہیں کہا جاتا، الحمدللہ نہیں کہا جاتا، الحمد شریف نہیں پڑھا جاتا. کیا کہتے ہیں؟ اللہ. کیا کہتے ہیں بھیا؟ پتہ ہے کیوں؟ سب سے پہلے کان میں آواز آئی اور دنیا والے ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈر، مرنا ہے تو اس کی راہ میں مر، رکھ اس کی رضا پہ اپنی نظر، پھر ساری یہ دنیا تیری ہے. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر. اللہ سب سے اسی لیے 5 وقت اذان میں اللہ اکبر 6 بار، تکبیر میں اللہ اکبر 6 بار، پھر نماز پڑھتے ہیں نیت باندھتے وقت اللہ اکبر، رکوع کے وقت اللہ اکبر، سجدے کے وقت اللہ اکبر، اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر. کیوں؟ سب سے بڑا یہی پیغام ہے، او بندے اللہ بڑا ہے، دھندا بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، دولت بڑی نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، حکومت بڑی نہیں. ڈریں گے کس سے؟ اللہ سے. اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ بزدل نہیں رہے گا. کیوں؟ کہ تو عز من تشا وہ تذل من تشا. ذلت و علت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر کیوں چاپلوسی کرو کسی کی؟ دوسری بات، آدمی بے ایمانی کرتا ہے کب؟ جب یہ ہوتا ہے کہ میں کہاں سے کھاؤں گا، اور جب پتہ چل جائے رازق کون ہے بھائی؟ اللہ. رازق کون ہے؟ اللہ. اس پہ یقین ہے اللہ ہی رازق ہے. بغیر کمائے دے دے گا؟ دے دے گا نہیں، دیا. ہر آدمی کو، مسلم یا غیر مسلم، مرد یا عورت، دیہاتی یا شہری،
माँ के पेट में 9 महीना न माँ ने दिया न बाप ने दिया, किसने दिया? अल्लाह ने। तो जिस रब ने माँ के पेट में 9 महीना हमें दिया, उसी रब ने पैदा होते ही 2 साल तक माँ के सीने से दूध की नहर जारी फरमाई। बोलो पिलाया कि नहीं पिलाया? बगैर मेहनत के, बगैर पैसे के। तो जब उसने हम में मजबूर थे, जब हमें दिया, अब तो हरकत में बरकत है, अगर चलेंगे तो चलेंगे। कोशिश करना तेरा काम है, तू मुट्ठी भर फेंकेगा, बोरी भर के लाएगा। हमारा काम कोशिश करना है। तो पहला काम है ईमान, और ईमान जब मजबूत हो जाएगा तो फिर आगे अमल की दुनिया है। अब तकवा में 2 चीजें हैं, जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है उस पर अमल करना, और जिससे मना किया है उससे रुक जाना। यहाँ पर मैं बहुत सादा लफ्जों में बताऊंगा कि जब बीमार आदमी होता है तो हकीम नब्ज देखता है, और देखने के बाद उसे 2 चीजें देता है, एक दवा और एक परहेज। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये भैया खामोश, याद रखो दवा और परहेज। आपने दवा ली 10 दिन, एक दिन देखा खुजली शुरू हो गई, दाद हो गए, हकीम साहब के पास पहुंचे। हकीम साहब क्या आपने अचार खाया है? जी। तो एक परहेज थोड़ा, 100 दवाएं बेकार हो गई। पता चला जब बीमार होता है तो हकीम 2 चीजें देता है, दवा और परहेज। इसी तरह ईमान के बाद इस्लाम में भी 2 चीजें हैं, दवा और परहेज। अब उलमा से पूछोगे, ये कहेंगे अवामिर और नवाही। कुछ चीजें हैं करने की, जिनको फर्ज कहते हैं, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब। नमाज दवा है, रोजा दवा है, ज़कात दवा है, हज दवा है, बड़ों का अदब दवा है, छोटों में प्यार दवा है, सच बोलना दवा है, खैरात करना दवा है, जिक्र करना दवा है। लेकिन नवाही जिनको मना किया गया है वो है परहेज, हराम, मकरूह, तहरीमी। लिहाजा हराम से बचना परहेज, झूठ से बचना परहेज, चुगली से बचना परहेज, गीबत से बचना। अब आप ही बताओ, 100 दवा एक तरफ, एक परहेज एक तरफ। अब अगर हमने नमाज पढ़ी और हराम से नहीं बचे तो सुनो हदीस पाक का मफहूम, एक हराम लुकमा 40 दिन की इबादत को बर्बाद कर दे। तो अब बताइए, जब एक हराम लुकमा खाए तो 40 दिन की इबादत बर्बाद हो जाए, तो रोजाना जो हराम खाएगा उसकी नमाज हो जाएगी? तो पता चला नमाज बाद में है, पाकी। अरे बोलो, नमाज पहले के पाकी पहले? बाकी। बोलो भाई। अच्छा, 17 औरत पहले है कि नमाज पहले? 17 औरत। तो ये बीमारी हमारी माँ बहनों में बहुत ज्यादा है। 17 औरत सुन लो, मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने तक छुपाना फर्ज है, दिखाना हराम है। और औरतों के लिए हथेली, चेहरा और कदम के सिवा पूरा शरीर छुपाना फर्ज है, दिखाना हराम है। लेकिन अफसोस ये है, पहले गरीबी का दौर था जब लिबास ढीले भी थे और नीचे भी थे, मोटे कपड़े थे, जो मुसलमान को होना चाहिए। लेकिन ये नया दौर जब आया, दौलत बढ़ती चली गई, लिबास घटता चला गया, वो बिल्कुल चुस्त हो गए, और कपड़ा इतना ऊंचा हो गया कि पेट नजर आए, इधर सीना नजर आए, पीछे से कमर नजर आए, सर पूरा नजर आए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये उलमा इकराम बैठे हैं, पूछ लेना, अगर इतना बारीक दुपट्टा है जिसमें बालों का रंग नजर आता है, नमाज नहीं होगी। अगर बच्ची कलाई दिखाती है तो 24 घंटा हराम, एक गुनाह करे
وہ गुनहगार, लेकिन ये इतना बड़ा पाप है, 24 घंटा घर में हराम हो रहा है, इसलिए कि कलाई दिखाना हराम है। अब बाप देखे तो हराम, भाई देखे तो हराम। अब बताइए जिस घर में 24 घंटा हराम हो वह सुकून मिलेगा? यकीनन तू हाथ की तो ताकत से दौलत इकट्ठी कर सकता है, लेकिन सुकून नहीं ला सकता। इसलिए कि तेरे घर में करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन अगर तेरी बेटी नंगे सर घर में है, घर के अंदर भी नंगे सर है, तो याद रखना रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। जब फरिश्ते नहीं आएंगे तो रहमत नहीं आएंगे। इसलिए खुदा के वास्ते अपने घरों में पर्दे के साथ साथ सबसे पहले ये पर्दा तो बाद में है, पहले सत्र औरत है जो भाई से भी है, बाप से भी है, तो कम से कम हम सबसे पहले इस पर अमल करें। आज अल्लाह का शुक्र है मर्दों की आस्तीन पूरी है और औरतों की हाफ। इसलिए मेरे आका ने फरमाया रूबा कासियातिन आरियातिन, कितनी पहनी हुई भी गंदी होगी। फिर हुक्म दिया जब ईमान भी तेरे पास है और तकवा भी तेरे पास है तो ऐ मुसलमान अब भरोसा मत करना। अब अगर तू अपना ईमान बचाना चाहता है तो अल्लाह वालों के साथ हो जा। अब दौलत तेरे पास आ गई तो तुझे जरूरी है अल्लाह वालों के साथ हो जा। अल्लाह ताला उनके सदके में तेरे ईमान की हिफाजत फरमाएगा। एक ही वाक़या बयान सुन लीजिए और जहन में बिठा लीजिए कि सोहबत कैसी हो। कहने को हम भी कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरे प्यारे कभी पकड़ा तो हो। क्या है? याद रखो सुन्नियत में इल्म अपनी जगह, अमल अपनी जगह, लेकिन न इल्म से फायदा है न डायरेक्ट अमल से फायदा है। अहले सुन्नत वल जमात के पास जो बड़ी दौलत है वो अदब है। अगर अदब है तो सुन्नियत है, और अदब नहीं है तो इल्म कोई फायदा नहीं देगा ना अमल फायदा देगा। क्यों? शैतान के पास इल्म भी था और अमल भी। अरे बोलो था या नहीं? था। लेकिन मरदूद क्यों हुआ? अदब नहीं था। एक अदब गया, 6,500 करोड़ वर्ष की इबादत मरदूद, इल्म भी बेकार। और मूसा अलैहिस्सलाम के सामने 70,000 जादूगर थे, वो काफिर थे, मुशरिक थे, सारे ऐब उनमें मौजूद थे, लेकिन सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिल में पैदा हो गई और उनके दिल में ये बैठ गया कि ये बड़े हैं, और मुकाबले के वक्त उन्होंने उनसे इजाजत ले ली। इजाजत बड़े से ली जाती है। इतना अदब करना था, रब ने फरमाया ए मेरे कलीम ये तेरा अदब करे, अब मैं इन्हें जहन्नम में नहीं जाने दूंगा, मैंने इन्हें सजदे में डाल दिया। तो एक अदब किया, उनके पास न नमाज का टाइम मिला न रोजे का टाइम मिला, थोड़ा सा वक्त मिला, सिर्फ अदब किया। अदब के सदके में 4 चीजें मिल गई, मोमिन हो गए, सहाबी हो गए, शहीद हुए और जन्नती हो गए। 70,000 जादूगर एक अदब के सदके में। तो इसलिए मेरे भाई अदब बहुत बड़ी चीज है, अदब। दूसरी बात, ये नस्ब में न भटके। आज के दौर में हम जो भटक रहे हैं, नबी का बेटा किनान अमल अच्छे नहीं, तो अल्लाह ने नबी को मना कर दिया, इसके लिए दुआ न करना। वो पहाड़ की चोटी पर गर्क हो गया। और एक मोहब्बत रखने वाली बूढ़ी औरत नूह अलैहिस्सलाम से, तो वो झोपड़ी में थी, जब तूफान आ गया आपको जहन में आया बूढ़ी औरत को भूल गया बंधु, उधर जाना हुआ तो बूढ़ी औरत झोपड़ी से निकलती है, अल्लाह के नबी क्या तूफान आ रहा, मैं चलूं? आपने कहा अल्लाह की बंदी तूफान तो आ भी गया, दुनिया को तबाह कर गया, कि अल्लाह का शुक्र है जिस रब ने आपको कश्ती में बचाया था, आपकी मोहब्बत के सदके में मुझे मेरी झोपड़ी में बचा लिया। सच्ची अकीदत है तो गैर औरत
मोहब्बत की बिना पर झोपड़ी में बस गई और नबी का बेटा होकर अकीदत नहीं थी तो पहाड़ पे रोटी पे भी गर्क हो गया। सबसे बड़ी चीज है अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत करना। और वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ कैसे हो जाओ, तो एक वाक्य ज़हन में रख लीजिए। कुत्ता जो कोई इबादत नहीं करता, लेकिन असहाबे कहफ ये नबी नहीं है, वली है, ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती है, ईमान बचाने के लिए जाने लगे, इनका कुत्ता साथ हो लिया। जब इनका कुत्ता साथ हुआ, इन्होंने रोका, वो नहीं रुका तो पत्थर लिया, जैसे पत्थर लिया वो रुक गया, और रुकने के बाद दिल में कहा, मौला तू तो दिलों का भेदी है, मुझे इनसे प्यार है, मैं इनके बगैर नहीं रह सकता, और ये मुझे साथ ले नहीं जा रहे, मौला मुझे जुबान दे दे ताकि मैं इनसे बात तो कर लूं। आखिर वजह क्या है, मुझे ले क्यों नहीं जा रहे? गौर से सुनो और इस पर अमल करो, काश बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह ने जुबान दी, ये अल्लाह के नेक बंदो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मेरा कसूर बताओ, मेरा कसूर क्या है, क्यों मुझे छोड़ के जा रहे हो? अब उन्होंने कहा, तेरा कोई कसूर नहीं, हमने तुझे पाला था, हमने तुझे पाला था, हम सोते थे, तू जागता था, चोर आते, तू भौंकता, हम जाग जाते, चोर भाग जाते, माल बच जाता, तेरा तो कोई कसूर नहीं है, अलबत्ता हमारी मजबूरी है। और मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि हम जा रहे छुपने, और तेरी आदत है भौंकना, जब तू भौंकेगा तो दुश्मन को पता चल जाएगा असहाबे कहफ का कुत्ता वहां भौंक रहा है। जरा और करो, ये कुत्ते की आदत कोई बुरी नहीं है, ये अल्लाह ने पैदा की है, लेकिन चोली, झूठ, गीबत ये हमारी बुरी आदतें हैं। अब सुनो, वो कुत्ता क्या कहता है, ए अल्लाह के बंदो मुझे साथ ले लो, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं अपनी आदत छोड़ दूंगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो कुत्ते ने अपनी आदत छोड़ दी, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ा। तो मेरे भाइयों, तुम भी वादा करो कि ए गौसे पाक हमें अपने साथ लगा लो, हम झूठ की आदत, चोली की आदत, बुहतान की आदत, गंदी आदतें छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारा साथ छोड़ेंगे, तब है मजा। अच्छा, जब साथ लगा लिया तो अब ये कुत्ता दरवाजे के कलाई पे बैठा, दरवाजे किनारे, और वो 300 साल सोते रहे, ये 300 साल बैठा रहा। कुत्ते की उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं होती, लेकिन ये कुत्ता 300 साल बैठा रहा सिर्फ। तो असहाबे कहफ का कुत्ता वलियों के साथ लग जाए तो उसकी जिंदगी का आलम यह है कि 300 साल बैठा रहे। तो जो हसनैन करीमैन नबी के कांधे पे बैठे, बट उनको मकाम कितना होगा। हमने पूछा, है कुत्ता जब तू उनके साथ था अंदर क्यों नहीं गया? वो लेट गए थे तो तू लेटा भी क्यों नहीं? ज़बान हाल से जवाब देता है, मैं गुस्ताख न था जो अल्लाह वालों की बराबरी करता, वो मेरे महबूब है, वो अंदर रहेंगे, मैं खादिम हूं, मैं बाहर रहूंगा। वो मेरे मखदूम है, वो लेटे रहेंगे, अगर मैं भी लेट गया तो बराबरी हो जाएगी, इसलिए नहीं, मैं बैठा रहूंगा। गुलाम आका के बराबर नहीं होता। इस अदब को अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया, वह कल्बुहुम बासितुन ज़वाई बिल वसीद, उनका कुत्ता दरवाजे पर कलाई बिछाए बैठा है। अब जरा गौर करो, ये आम कुत्ता घर में आ जाए तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और ये कुत्ता जो अल्लाह वालों के साथ हो गया, कुरान में उसका जिक्र है, इसके नाम के वजीफे पढ़े जा रहे हैं। अगर कोई इस आयत को लिखकर जेब में रख ले या इस आयत को पढ़ के कुत्तों के बीच में से निकल जाए, इंशाअल्लाह कुत्ता काट नहीं सकेगा।
اور اسی کا نام خط پہ لکھ دیا جائے تو خط غائب نہیں ہوگا قطمیر. تو بتاؤ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی محتاج کے جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا جو کچھ ہوا بیان وہ آغاز باب تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بڑی طبیعت خوش ہوئی ماشاءاللہ بچوں پر بڑی محنت ہوئی ہے کہ صرف یہ نہیں رٹا دیا ہے تلفظ بھی بڑے اچھے تھے مضامین بھی بڑے پیارے تھے. اللہ تعالیٰ مدرسے کو اور اس کے چلانے والوں کو اور ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کو سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں عمل میں جان میں مال میں برکتیں عطا فرمائے. بستی میں امن و چین عطا فرمائے. ملک میں امن و شانتی عطا فرمائے. جہاں تاریخ تھا ظلمت قضا تھا سخت کالا تھا جہاں تاریخ تھا ظلمت قضا تھا سخت کالا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں عرب میں چاند نکلا. چاندنی پھیلی زمانے میں ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. خاک کے ذروں کو حدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے رب سب کے آقا جب دنیا میں تشریف لائے فرشتے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے. ہم بھی وعدہ اپناتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام کا نظرانہ پیش